in okay, so this is getting recorded, and more importantly, in case if you missed anything or if you have not been able to understand anything, then this definitely recording will help you out. Okay, so we are going to get started with tenses, and I want active participation because at the end of every tense you are going to be having an exercise to do, and I want each and every one of you to actively participate in doing the exercise. Now tense is something which is, I suppose, the most dreaded portion. बच्चा गुजराती मीडियम से आता है, हिंदी मीडियम से आता है, सर टेंसेस में बहुत दिक्कत हो रही है. So this session is going to help you out improve your knowledge in tenses. We are going to take probably 2 or 3 tenses in a day, and in the next lecture I'll be taking 2 or 3 tenses more. So as you know that there are 12 types of tenses, and ये 12 types of tenses को हम divide कैसे करते हैं? There are 3 times, मतलब times 3 है, past, present and future. And of these 3 times there are 4 aspects, namely simple, continuous, perfect and perfect continuous. I'm going to go slow in tenses, and it is very important that आप उसको ध्यान से सुने और समझे. Now in IELTS, you may not be required to have the knowledge of all the type of tenses. For example, sir, तो हमें IELTS के लिए कितने tenses की जरूरत पड़ेगी? Now, in order to perform well in IELTS, and if you want to make complex sentences or if you want to make different types of sentences, then you need to have the knowledge of all the 4 types of tenses as far as past is concerned. So you have to have the knowledge of simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And you also need to have the knowledge of all the present 4 forms or 4 aspects of present type of tense, which is simple present or present simple, present continuous, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. मतलब पास्ट और प्रेजेंट के दोनों चारों 4 टेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है. बट एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न्ड, आपको अगर सिर्फ फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस की नॉलेज है, देन इट इज फाइन. You would not be required to utilize future perfect and future perfect continuous any time or anywhere in IELTS. जरूरत ज्यादातर मैंने तो देखा नहीं कि जरूरत पड़ती है. So these are all the type of tenses. और मैं चाहूंगा ये जो चीज आपके सामने है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now this is how, for example, if you want to refer tenses, आपके पास 5 मिनट का टाइम है और आपको सारे tenses refer करने हैं, then this is a very good, a table which will help you out to have the thorough understanding of the tenses. So let me know if when you have taken the screenshot of this, because this is going to be helping you before the day of the examination. If you want to refer the tenses, then this table, because it is along with the example, और आपको पिज्जा बहुत पसंद होता है तो पिज्जा का ही एग्जाम्पल है. So these are all the 4, 12 types of tenses. मैंने पहले भी बताया था कि you are going to utilize all the 4 types of past tenses in IELTS, all the 4 types of present tenses in IELTS. But as far as future is concerned, ये दो पहले जो tense है, future simple और future continuous, इसकी जरूरत पड़ेगी. बट ये जो लास्ट टेंसेस है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसकी 99.99% केस में जरूरत नहीं पड़ेगी. सो टेक्निकली यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ 10 टाइप्स ऑफ टेंसेस आउट ऑफ 12 टाइप्स. Is it getting clear? And let me know when you have taken the screenshot of this. Let me know when you have taken the screenshot, because this will help you out. Tell me when you are done. Yes, is it done? Very good. That's great. ये आपको काम लगेगा. Even if you're coming from pure English medium background, then also this is going to help you out. So don't take these things for granted. Okay. Now let us take the first type of tense. जो पहला type of tense है, this is what we call as present simple. हम उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. We can also call it simple present tense या फिर present simple tense. But this is the first type of tense. And let me tell you, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो अ टेंस इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट मिस्टेक्स. और ये मिस्टेक्स कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू कम डाउन टू दैट पार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब होता है? इट इज वेरी वेरी वंडरफुली रिटन ओवर हियर that simple present tense is used to indicate an action that is generally true or habitual. That is, it took place in the past, continue to take place in the present, and will take place in the future as well. This tense is used to denote habits, routines and facts. ऐसी जो एक्शन जो पास्ट में भी थी, आज भी इतनी ही सच है और भविष्य में उतनी ही सच रहने वाली है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का. ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिनोट हैबिट्स, रूटीन्स एंड फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, habits and routines. I drink tea every evening. That means it is my habit.
I drink tea every evening, and I was drinking tea in the past. I am drinking tea right now, and I am going to drink tea in the future. So it is something that is going to, which is true in the past, it is true at present, and it is also going to remain true in the future. तो हैबिट और रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं. माहिर गोज टू द बीच ऑन सैटरडेज. लास्ट सैटरडे भी वो गया था, इस सैटरडे भी वो गया है, और आगे आने वाले सैटरडेज में भी जाने वाला है. इट्स बेसिकली अ रूटीन. So this is what we call that. This is where we are going to utilize simple present tense. Children often play video games after school. Again, it is a habit. काफी बच्चे स्कूल वीडियो गेम्स खेलते हैं स्कूल के बाद. पहले भी वो सच था, आज भी सच है, और भविष्य में वो सच रहने वाला है. तो पहला जो फायदा है और पहला इस्तेमाल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इज टू इंडिकेट हैबिट्स एंड रूटीन्स. दूसरा उसका एग्जाम्पल है और दूसरा उसका यूजेज है is to identify or to demonstrate facts. जैसे कि मिहिर वर्क्स एज अ डॉक्टर, तो वो फैक्ट है कि भाई मिहिर डॉक्टर के हिसाब से काम करता है. यू ड्रॉ वेरी वेल, सो यू आर ड्रॉइंग वेरी वेल, इट्स अ फैक्ट. यू ड्रॉ वेरी वेल. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ फैक्ट. सो इन फैक्ट्स, जैसे कि बहुत छोटे से, हम जब छोटे थे तो बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आता था, सन राइजेस इन द ईस्ट. तो ये फैक्ट है कि भाई सन जो है वो ईस्ट में ही राइज करता है. वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चे मिस्टेक कहां पे करते हैं? जितना ये सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं. सर वो क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिंक है, हियर यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एस फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे गोज है, यहाँ पे प्ले है. हियर आई एम राइटिंग वर्क्स, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ है, और यहाँ पे लिखा है बॉयल्स. यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बट बिफोर वी गो फर्दर, आई रिपीट, simple present tense is used for identifying habits and routines. I wake up early in the morning, that is an habit. तो ये simple present tense का इस्तेमाल होता है. और facts, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, sun rises in the east, एक ये fact है. तो वहां पे हम simple present tense का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. If you don't have the knowledge of first person, second person, and third person, then there is a small possibility that you might not also know the usage of third person singular. तो पहले इतना समझा जाए कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड इन द थर्ड पर्सन यू आर गोइंग टू बी हैविंग ही, शी, इट और दे. मैं बच्चों को ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई भी चीज, आई और वी, दिस इज फर्स्ट पर्सन. अब ये फर्स्ट पर्सन को समझ लो, बिकॉज फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल आप ऐसे में भी करते हो. आपको याद होगा ऐसे में हम करते हैं जब हमें हमें अपना ओपिनियन देना होता है, तो हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं. आई एग्री, आई बिलीव दैट. तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ. फर्स्ट पर्सन में वी भी आता है. So in first person, there are only two things, I or we. In second person, you have got you. And in third person, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, I, we और you के अलावा कोई भी चीज है, जैसे कि he, she, it, they, कोई भी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल है, तो टेबल भी वो थर्ड पर्सन ही हुआ. आप अपने आप को सवाल पूछिए कि अगर I और I, we और you नहीं है, that means it is going to be the third person. I repeat, फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, एंड इन थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, या तो फिर ऐसी कोई भी चीज विच इज नॉट आई, वी और यू. ओके, नाउ नियम ये कहता है, whenever in the subject you have got third person singular, I repeat, subject में first person भी नहीं है, third person भी नहीं है, सॉरी सेकंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन में दो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल. ये जो अटपटा सा नियम है इज ओनली गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू थर्ड पर्सन सिंगुलर. जहां पे सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, वहां पे आपको वर्ब के पीछे एस लगाना जरूरी है. अगर आप ये नहीं करते, देन यू आर मेकिंग अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस. You are going to lose marks on grammatical range and accuracy, which is one of the parameters of IELTS writing and speaking. ये चीज आप बोलोगे शायद ये उड़ के बाहर नहीं आएगी. बट इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दिस, it is going to be very very transparent in form in the eyes of examiner that this guy is not even knowing the usage of third person singular. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या आवाज आ रही है मेरी? यस, आकाश इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट कमिंग. यस, या माय वॉइस, इज माय वॉइस कमिंग एवरीबॉडी?
It's clear. Jaldi is saying that it is clear. So, Akash, you'll have to adjust your, uh, yeah, you will have to adjust your, headphone or something. Yeah, thank you so much. Thanks. Not an issue. आकाश आप adjust कर लो. शायद थोड़ा सा volume आपको adjust करना पड़ेगा. Okay. So coming back to third person singular, तो इतना याद रखना है कि जब आपके subject में third person singular है, then what you need to do is just a minute. You need to add s to the verb. अब s add करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है. जैसे कि अगर कोई भी वर्ड, जैसे कि most verbs in English form the third person singular by adding s to the base form. अगर आपको थर्ड पर्सन का वर्ब बनाना है तो बहुत सारे वर्ब, ज्यादातर वर्ब्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे एस लगाना पड़ेगा. जैसे कि सिंग इज गोइंग टू बिकम सिंग्स, गिव इज गोइंग टू बिकम गिव्स एंड रिक्वायर इज गोइंग टू बिकम रिक्वायर्स. लेकिन ऐसे वर्ब जो पीछे सी एच, एस, एस एच, एक्स और जेड से स्टार्ट खत्म होते हैं, उसमें आपको पीछे ई एस लगाना पड़ेगा. जैसे कि वॉच बन जाएगा वॉचेस, मिस बन जाएगा मिसिस, रस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू रसिस, मिक्स मिक्सिस एंड बज इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू बजिस. वैसे तो ज्यादातर हमें पता ही होता है, बट अगर ये नॉलेज है तो काम लगेगा. फाइनली अगर कोई वर्ब ऐसा है जो पीछे वाई से एंड होता है, तो आपको वाई निकाल के आपको आई ई एस करना पड़ेगा. तो ये तीन चीज का ध्यान रखना है. लेकिन ऐसे काफी वर्ब है जो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे. इसको हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स. क्या कहेंगे इसको? इरेगुलर वर्ब. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एज द नेम सजेस्ट सर्टेन इरेगुलर वर्ब्स हैव स्पेशल फॉर्म्स. द थर्ड पर्सन ऑफ बी इन द प्रेजेंट टेंस इज द थर्ड पर्सन. एक काम करते हैं, लेट अस नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस और एल्स यू विल गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड. अभी इतनी चीज याद रखो that at the end of verb you need to add s according to the rules given over here when the subject is third person singular. Is it getting clear or not everybody? Yes or no? So let us try to do it. इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. आप मुझे, मैं 1 से 10 लिखता हूं और आप मुझे कम का क्या फॉर्म आएगा, बार्क का क्या फॉर्म आएगा, वो आप अपने नोटबुक में लिख दो. आई रिपीट, दिस इज, यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. चलिए, I'm going to give you 2 or 3 minutes. And let me see who gets all right. Let's see. I want everybody to give, because ye thoda sa, it's somewhat which is difficult, and hence it is very important that everybody should get all the answers correct. मैं आपको सारे के सारे questions समझाऊंगा, so don't worry about that part. Let me know when you are done, students. Not to worry. Okay. When you written answer in your notebook, let us see who gets all right. Okay. First of all, let us try to understand the first one. Winter days after autumn.
I want everybody to participate in this. Now let me first of all check the answers. पहले मैं आंसर दिखाता हूं और आप उसको चेक कीजिए. These are the answers. So let me see who gets all right. ये सारे के सारे आंसर्स आप एक बार चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कि आंसर आपके कितने सही थे. चलिए, and then I'll explain each and everything to you. एक एक सेंटेंस में आपको समझाऊंगा. So you'll come to know. पहले first of all check out whether you got all answers correct or incorrect. Check it out. Very good, Norman. Okay, let me see who gets all right. Very good. से आई कैन सी वेरी फ्यू ऑफ यू हैव गॉट ऑल राइट. 3 या 4 लोगों के ही सारे सही पड़े हैं, बाकी सारे लोगों के थोड़े से गलत हुए. इशिता हैज आल्सो गॉट राइट. ओके, Healy has also got. Okay, fine. So let us try to solve it out. I am getting answers from kisi ke 7, kisi ke 5. Now those who have over here, let me put it this way. Those who have got all right, I would consider their English to be good. जिनके अगर 8 या 9 आए हैं उनका इंग्लिश अच्छा है, एवरेज है, अबव एवरेज है. लेकिन अगर किसी के 5, 6 या 7 आए हैं तो मैं उनको कहूंगा कि आप ग्रामर पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करें और ये बहुत सिंपल है. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस, लेट अस टेक द फर्स्ट सेंटेंस. विंटर. विंटर इज बेसिकली नॉट. आप अपने आप को सवाल पूछिए. विंटर इज द सब्जेक्ट. विंटर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर. एंड मोर इंपॉर्टेंटली विंटर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर. एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज. आप अपने को सवाल पूछिए, इज विंटर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? इट इज थर्ड पर्सन बिकॉज इट इज नॉट आई, वी और यू. वो नहीं है. और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप इतना सोचिए. विंटर है, वैसे विंटर्स नहीं होगा लेकिन विंटर. तो विंटर इज फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो इसका मतलब जो वर्ब उसको फॉलो करेगा उसके पीछे एस लगेगा. उसी के कारण विंटर कम्स आफ्टर ऑटम. सेकंड इज अ डॉग. डॉग इज अगेन अ थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है. डॉग है या डॉग्स है? इट्स अ डॉग. दैट मींस इट इज सिंगुलर. नियम ये कहता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो वर्ब है उसके पीछे एस लगेगा. उसी के कारण अ डॉग बार्क्स आएगा. यू लुक टायर्ड, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन नहीं है. नियम तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को लागू होता है, तो लुक के पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है. एवरीवन. एवरीवन जो है इज नॉट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इट इज थर्ड पर्सन. और ये आपको पता चलना चाहिए कि एवरीवन वो है सिंगुलर. वो सिंगुलर है. एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, वो सारे के सारे जो वर्ड्स है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो जाहिर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पीछे मेक का मेक्स लगेगा. अली. आई, यू, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है. अली इज थर्ड पर्सन, अकेला है, सिंगुलर है, तो आएगा वर्क्स. यहां पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा. अली एंड रमेश, अगर ऐसा है, वापस मैं कहना चाहूंगा, रिपीट, अली एंड रमेश, नाउ दैट बिकम्स प्लूरल, तो वर्क ही आएगा. बट क्योंकि अली सिंगुलर है तो फिर वर्क्स आएगा. ओके. सिक्स्थ, जूडी. जूडी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो स्पीक नहीं आएगा. मैंने बताया वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के पीछे एस लगता है. सो जूडी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. अगर जूडी एंड कैरोलिन होता तो स्पीक ही रहता. समझने वाली बात है. टीम्स नी. टीम्स नी जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. नीज नहीं है, नी है, अकेला है नी, तो पीछे हर्ट्स होगा, एस लग जाएगा. मंकीज. अब ये थ्री देखिए, आठवां थोड़ा सा अलग है. मंकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है. नियम तो हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए था. तो मंकीज वो है, प्लूरल है, तो जाहिर है लाइक ही रहेगा. केट अगेन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट मीन्स ईट नहीं होगा, ईट्स होगा. एंड फाइनली ही जो है इज नॉट फर्स्ट पर्सन, इज नॉट सेकंड पर्सन. मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन में सिर्फ होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या फिर सारे बाकी के चीज. तो ही थर्ड पर्सन हुआ, तो वो भी सिंगुलर है, तो ही टाइप के बदले टाइप्स आएगा. टाइप्स वेरी फास्ट. आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर टू यू. अब ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये गलतियां नहीं करोगे when you are writing statements. Understood or not? I have tried my level best to make you understand each and every possible thing. Make sure that you don't commit this small mistakes in your writing. Is it getting clear, everybody? Yes or no? पता चल गया ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला मांजरा? Everybody? And if you are still not clear, you can always call me tomorrow. I'll help you out. Not to worry. Clear? और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये इस्तेमाल सब जगह होता है. व्हेन यू राइट एवरी सेंटेंस, एनी सेंटेंस, थर्ड पर्सन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. वेरी वेरी
एक छोटा सा एग्जांपल है जो एकेडमिक वाले है, मैं हर वक्त ये एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा एकेडमिक बच्चे जो होते हैं उनको ग्राफ लिखना होता है, द पाई चार्ट्स ऐसा होता है, गलतियां पहले कर देते, द पाई चार्ट शो आएगा या शोज आएगा? यस एवरीबॉडी, पाई चार्ट शो या शोज आएगा? लेट मी नो। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, तीन चार लोगों ने शो, ये सोर्स कहां से आएगा? अरे माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हो आप, सोर्स कहां से आएगा? सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवर हियर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एवरीबॉडी आई वांट सब्जेक्ट, द पाई चार्ट्स, द पाई चार्ट्स इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। चार्ट है कि ये चार्ट्स है? इज इट चार्ट और चार्ट्स? चार्ट्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। तो मैंने नियम क्या था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला नियम था जिसमें पीछे एस लगता है वो किसके लिए था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही था। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई चार्ट शो आएगा, और यहाँ पे अगर पाई चार्ट होता, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, यहाँ पे अगर पाई चार्ट होता देन इट वुड हैव बीन शोज। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आप सोचिए, ये पहला सेंटेंस होता है आपके राइटिंग टास्क 1 का, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर एकेडमिक मॉड्यूल, द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, and if you commit this blunder in the first sentence, just imagine the impression that you are going to create in the eyes of examiner. तो ये छोटा सा ध्यान रखना जरूरी है। Is it now clear everybody? Yes or no? Okay, so ये video you are anyhow going to get tomorrow, so in case if you got any doubts you can always go through it once again. Okay, nice. Now this is the first tense. The second tense that we are going to do is present continuous. This is also a very very important tense. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इस्तेमाल बहुत होता है इसका। सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें सब्जेक्ट के पीछे इज, एम, आर प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऐसी चीज जो थोड़े समय पहले मतलब पास्ट में चालू हुई है और अभी चल रही है। आई रिपीट, एन एक्शन दैट गॉट स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गेटिंग कंटिन्यूड राइट नाउ, तब जाके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। सर इसका इस्तेमाल कैसे होता है आपको पता होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो इट इज गोइंग टू बी आई एम, फिर ही शी इट होगा तो इसके पीछे इज लगेगा, और यू वी और दे है तो उसके पीछे आर लगेगा। यू आर कमिंग टू माई पार्टी, आर यू कमिंग टू माई पार्टी टू नाइट, ही इज कमिंग, सी इज कमिंग, इट इज वेरी हॉट, आई एम कमिंग। तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ, ऐसी चीज विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि आई एम टीचिंग IELTS राइट नाउ, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टीचिंग। सो एक्शंस हैपनिंग नाउ के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग टी राइट नाउ, मैं अभी चाय को पी रहा हूँ। वी आर हैविंग डिनर, आप लोगों में से काफी लोग डिनर करते करते मेरा लेक्चर अटेंड करते होंगे। सो यू कैन से आई एम हैविंग डिनर राइट नाउ। ओके, देन इट इज रेनिंग आउटसाइड। सो ये किसका इस्तेमाल होता है? पहला इस्तेमाल फॉर एक्शन हैपनिंग, एक्शंस हैपनिंग नाउ। दूसरा इस्तेमाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज जो टेम्पररी है। जैसे कि आप गिटार सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार, प्ले द गिटार। तो ऐसी चीज भले ही आप लाइफ टाइम गिटार नहीं सीखने वाले, बट इट्स अ टेम्पररी एक्टिविटी, अभी तो कर रहे हो आप। तो दूसरा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टू इंडिकेट टेम्पररी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, या तो फिर आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज एट द मोमेंट। आपको पता होगा अभी ये कोरोना वायरस के कारण वेब सीरीज पे काफी सीरीज आती है जिसके 10-10 एपिसोड्स होते हैं। तो आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारे एपिसोड्स खत्म कर दोगे। तो आपने क्या किया, कल यस्टरडे आपने 2-3 एपिसोड देखे, आज शायद आप 2-3 एपिसोड देखोगे, और शायद कल आप 2-3 एपिसोड वापस देखोगे। आप अपने दोस्त को बोलोगे आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज एट द मोमेंट, लेकिन बाद में जिस 9-10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे बाद में इसको कंटिन्यू नहीं करोगे। सो इट इज बेसिकली ए टेम्पररी एक्टिविटी। तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो। इज इट गेटिंग क्लियर? एंड थर्ड इज चेंजेस टेकिंग प्लेस राइट नाउ, ऐसी चीज जो अभी अभी चेंज हो रही है। जैसे कि इंग्लिश लेसन्स ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दिस डेज। और जो दूसरा एग्जाम्पल है सबको लागू होता है और सब जानते भी है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग रैपिडली, या तो फिर साइंटिस्ट से दैट अर्थ इज गेटिंग वार्मर। ऐसी चीज चेंजेस जो अभी हो रहे हैं,
ये टेम्पररी नहीं हो ही रहे, जैसे कि इंग्लिश लेसन्स आर ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दिस डेज, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग रैपिडली। तो याद रखना है द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज फॉर थ्री थिंग्स। नंबर वन, एक्शंस हैपनिंग नाउ, जैसे कि मैं आज अभी बोल रहा हूं और ये चीज कर रहा हूं और तब ये एक्शन होती है, तब का इस्तेमाल करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेम्पररी एक्टिविटीज जो अभी चल रही है, मैंने इसके लिए आपको वेब सीरीज का बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया, और पेट्रोल वाला एग्जांपल, चेंजेस टेकिंग प्लेस राइट नाउ, द केसेस ऑफ कोरोना वायरस यू नो आर डिक्रीजिंग राइट नाउ, तो ये अभी चेंजेस टेकिंग प्लेस नाउ। सो दिस आर द थ्री यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद हो तो मैं बताना चाहूंगा, हमने पहला टेंस किया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, वो हैबिट्स और रूटीन्स को दिखाने के लिए और फैक्ट्स को दिखाने के लिए था, जिसमें हमने ये भी कहा कि आपको पीछे थर्ड पर्सन सिंगुलर में यू नीड टू यूटिलाइज एस, ये जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल्स, आई एम टेकिंग माय एग्जाम्स सून, आई एम मूविंग टू कनाडा इन सितंबर, माय डैड इज हेल्पिंग मी, अभी चल रहा है, मी विद गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, द मॉम माय मॉम इज पैनिकिंग बिकॉज आई एम लिविंग होम सून, I am packing all my clothes to go to Canada. I am studying hard for the IELTS test. आप देखेंगे सारे सेंटेंस में is, am, are, was, were, उसके पीछे ing फॉर्म है. So this is again a very important tense as far as IELTS speaking is concerned. और आप जब writing भी करते हो, when you are doing the writing, when you are giving an example in writing, at that point of time also you are utilizing present continuous tense. So let us see whether you're able to do all the tense examples, जैसे हमने examples किए वैसे आप examples यहाँ पे भी करोगे. Let us see whether you do it or not. चलिए, you need to utilize present continuous, जिसका दूसरा नाम है present progressive, दोनों एक ही है, इस्तेमाल करना है आपको, याद रखना है. is, am, are, was, were का गलत इस्तेमाल नहीं करना है. क्लियर, आपको बताया था मैंने. Let me see who gets all right. Make sure you're also writing the correct spelling. Let me see when you are done. Okay. Is it done, everybody? Okay, great. So let us check the answers, everybody. Yeah, I can see that lots of done tags are coming. That shows that most of the people have at least tried. मैं चाहूँगा सारे लोग try करें कम से कम, so that you can always get to know. Now I also want a very honest answer. How many of you got all correct? Let us see the answers now. These are the answers, and I want you people to check and let me know how many of you got all correct. Yeah, is my voice audible now? Ahir? Yes, everybody, is my voice audible? Okay. Great. So, yeah, Sachin, you wanted to ask me something? Okay. So let us take the first example. Let us take the first example.
They are enjoying the roller coaster ride. वेरी गुड. सो दे आर एंजॉइंग का मतलब यहाँ पे देख सकते हो आर एंजॉइंग, बिकॉज इट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो जाहिर आर एंजॉइंग हो जाएगा. Jill is washing her hair. It is getting dark. The dentist is examining. Spelling of examination, examining, everybody needs to check. The train is passing through the tunnel. यहाँ पे 6 का आंसर काफी लोगों का शायद गलत पड़ा होगा, because men है तो आपने समझना पड़ेगा it is plural. So the men are, for example, working very hard in the sun. What show the theater is showing today? ये जो show है ये noun है, but यहाँ पे बहुत important था, the theater is showing today. We are making a snowman. For example, we are making a snowman. आप कहीं बर्फीली जगह पे गए और उससे आप छोटे बच्चे जो स्नोमैन बनाते हैं वैसे आपने स्नोमैन बना रहे हो तो आप बोलोगे वी आर मेकिंग अ स्नोमैन. द प्लेन इज फ्लाइंग. प्लेन अकेला है वो सिंगुलर है तो इज फ्लाइंग आएगा. एंड फाइनली the teachers are having a meeting. So this was all about two types of tenses. I'm not going to conduct take all the types of tenses, but I hope the things are clear with you, because now I'm going to take a very important session. Yeah, everything is clear. Did you enjoy the tense part, everybody? First of all, yes or no? I took this tenses after such a long time, so I don't know how many of you have enjoyed the session or not. So इसमें से what are the key outputs you need to understand. सबसे important चीज यहाँ पे आपको ये समझ के आती है कौन सी, सबसे मैंने 2 टेंसेस सिखाए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी, की टेकअवेज जिसको हम कहेंगे की टेकअवेज, वो कौन सा था? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? आई एम रेडी टू अनम्यूट हिम और हर इफ ही और शी. मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? मैं आपको बताता हूँ. ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो आपने याद रखना है मेरे बच्चे, मैं जब आपका ऐसे चेक करता हूं तो ये गलती नहीं होनी चाहिए. आई वॉन्ट नन ऑफ यू टू कमिट अ सिंपल मिस्टेक. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का ध्यान रखना है आपको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब ऐसे लिखते हो सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर. आप देखिए, व्हेन यू राइट एन ऐसे यू आर एनी हाउ गेटिंग 40 मिनट्स टू राइट 250 वर्ड्स. तो आपको समझना पड़ेगा कि 250 वर्ड्स के लिए 40 मिनट्स बहुत ज्यादा है. आपने कभी चेक किया है? Where have you checked how many minutes are you taking? But before we jump on to that part, let me come on to the new slide. बहुत important slide है. I'm going to take this session of advantages and disadvantages essay types. But before I do that, let me tell you that out of आपको पता होगा कि writing consists of 2 parts, and in the second part in which you are supposed to write an essay, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है. तो ऐसे में याद रखना है कि आपको 40 मिनट दिए जाते हैं. एंड 40 मिनट्स, लेट मी टेल यू, इज टू बिग अ टाइम. आप 40 मिनट में 500 वर्ड्स लिख सकते हो. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. आप जब लिखना चालू करोगे तो आपको एहसास होता जाएगा कि 40 मिनट्स में आप काफी वर्ड्स लिख सकते हो. यही ऐसे अगर पीटी और टॉफेल में है तो आपको सिर्फ 30 मिनट दिए जाते हैं. दैट शोज दैट यू आर गेटिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा इन आईएलटीएस. ऐसे केस में 5 मिनट आप ध्यान रखें. यू नीड टू मेक श्योर दैट स्पेंड 5 मिनट्स एट द एंड ऑफ द एसे टू चेक आउट फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन. देखिए, आपने ये भी समझना पड़ेगा कि लास्ट 5 मिनट में आप आइडियाज को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज द एंटायर पैराग्राफ. ऑल यू नीड टू चेक आउट एट द एंड ऑफ द एंटायर ऐसे बीइंग रिटन बाय यू, जो आपको 5 मिनट ज्यादा मिले, मतलब 5 मिनट आप स्पेंड करोगे. मैं चाहूंगा आप अपना ऐसे 35 मिनट्स में कंप्लीट करें. एंड इन द लास्ट 5 मिनट्स यू नीड टू चेक आउट व्हाट, यू नीड टू चेक आउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू नीड टू चेक आउट ग्रामर. एंड यू तो ग्रामर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को हम समझाते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर चेक करना जरूरी है. अलॉन्ग विथ काफी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो हम बच्चों को समझाते हैं वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर. Okay, now coming back to this part, this is a very important session of advantages disadvantages essay. तो ऐसे में सर क्या होता है, ये हर वक्त मैं लेता हूं, लेकिन बच्चे काफी लोगों को पता नहीं होता कि कितने टाइप के एसेज हैं. ये जो मैं ऐसे सिखा रहा हूं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, रिगार्डलेस ऑफ पहली बार है, या मैं उस पे आता हूँ विभूति. आई एम कमिंग टू दैट पार्ट नाउ. हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके 5 टाइप के एसेज है. यू आर हैविंग एसे ऑफ 5 टाइप्स. 5 टाइप के ऐसे होता है. एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट
ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. A person attending my lecture for the very first time is also going to equally understand as much as a person who is attending my lecture for the 7th or 8th time. So don't worry, मैं ऐसे समझाऊंगा. So repeat करना चाहूंगा कि IELTS में ऐसे 5 प्रकार के होते हैं: ओपिनियन, डिस्कशन, ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डबल क्वेश्चंस. आई एम नॉट गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऐसे इन वन सेशन. आई एम ओनली गोइंग टू टेक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऐसे, और उसमें भी एक ही टाइप लूंगा मैं. So IELTS advantages and disadvantages questions normally give you a statement and ask you to comment on the advantages and disadvantages of that statement. जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो ऐसे होता है उसमें 3 टाइप्स होते हैं, वैसे ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में 3 टाइप होते हैं. सर वो 3 टाइप कौन से होते हैं? The problem is that there are 3 different types of advantages and disadvantages ऐसे, and they each require a different approach. If you answer them in different way, then you risk losing lots of easy marks. तो ऐसे में जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसमें 3 टाइप के हैं, और आपको पता चलना चाहिए कि हर एक ऐसे लिखने का तरीका अलग अलग है. This lesson will look at each of these 3 question types and discuss only advantages disadvantages ऐसे. मैं आपको ये दिखाऊंगा, I'll make you aware of what are the 3 types of advantages disadvantages ऐसे. लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ एक ही टाइप, जिसमें आपको सिर्फ एडवांटेज और सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. सो आई वांट एनी वन ऑफ यू टू हेल्प मी आउट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे आर देयर? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? यस. हाउ मेनी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसेस आर देयर? कैन एनीवन रेज योर हैंड एंड हेल्प मी आउट? यस. कौन हेल्प करेगा मुझे? यस. 3 टाइप के ऐसे कौन से होते हैं, मुझे बताएंगे कौन से 3 टाइप होते हैं? तो 3 टाइप के जो ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कॉजेस सॉल्यूशन वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं. हाँ, मैं आपको बता रहा हूं 3 टाइप कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 3 टाइप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे होते हैं. उसमें ये पहला टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है, ओके, नाउ बिफोर आई डू दैट लेट मी एक्सप्लेन के सब टाइप के लिए आपको कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं. यू नीड टू राइट 4 to 5 पैराग्राफ. सारे ऐसे के लिए आपको 4 से 5, आपको पता होगा कोई भी आप ऐसे लिखते हो उसके लिए आपको 4 से 5 पैराग्राफ का इस्तेमाल होता है. क्लियर? नाउ you need to write, you should aim at writing 45 to 60 words in introduction. अब मैं जो आपको ये सिखा रहा हूं is not only limited to advantages disadvantages ऐसे, this is true for every type of essay. तो जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है कि ऐसे कैसे लिखा जाए, वो सिर्फ अभी इतना सोचे और समझे कि ऐसे लिखने के लिए आपको 4 या 5 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे. उसमें इंट्रोडक्शन जो होगा इज गोइंग टू बी ऑफ 45 to 60 वर्ड्स, 2 से 3 लाइन का होगा. बॉडी पैराग्राफ, जो बीच के जो पैराग्राफ होते हैं वो 80 से 90 वर्ड्स के होंगे, उसमें 3 से 5 लाइन होगी. और लास्ट कंक्लूजन जो होगा वो 35 to 45 वर्ड्स, 35 to 40 वर्ड्स होंगे, जिसमें 1 से 2 लाइन होगी. ओके, नाउ हम लोग जिस चीज पे आते हैं वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे में कितने टाइप्स होते हैं. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग वन टाइप ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. ओके, पहला एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, पहला क्वेश्चन है, देखिए. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decided to do this. काफी कंट्रीज में बच्चे जो होते हैं हाई स्कूल खत्म होने के बाद और यूनिवर्सिटी स्टडीज शुरू होने से पहले ब्रेक लेते हैं, या तो फिर काम करते हैं या तो फिर ट्रैवल पे निकल जाते हैं. आपने देखा होगा काफी मूवीज में. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये ऐसे का प्रॉम्प्ट देखिए. प्रॉम्प्ट ये कहता है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर यंग पीपल हु डिसाइडेड टू डू दिस. आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, लेकिन आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है. तो यहां पे आपको ओपिनियन नहीं पूछा है, दैट मींस यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर ओपिनियन. ऐसे केस में द एसे इज गोइंग टू बी ऑफ 4 पैराग्राफ, सिंपल, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. In the second in the second paragraph, that is body paragraph 1, you are going to write advantages. In body paragraph 2, you are going to write disadvantages, and finally conclusion. यहाँ पे गलतियां ये होती है बच्चों की कि अननेसेसरी वो लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं.
क्योंकि ज्यादातर एसेज में अपना ओपिनियन देना होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ गिविंग द ओपिनियन। तो बच्चे छोटी सी गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कि ओपिनियन दे देते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं देना है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। दूसरे टाइप में ऐसा है, some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school। काफी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों के लिए बेहतर है कि वो लोग फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि स्पेनिश है, इंग्लिश है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चालू कर दे इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? तो एडवांटेजेस किसका? एडवांटेजेस फॉरेन लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल में अगर पढ़ते हो, क्वेश्चन ये पूछा है क्या एडवांटेजेस का वेट, मतलब कि उसका पल्ला डिसएडवांटेजेस से ज्यादा भारी है? ये आउटवे से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। ऐसे केस में यू कैन राइट 5 पैराग्राफ्स। क्योंकि आप ऐसा अगर मानते हो, फॉर एग्जांपल, कि एडवांटेजेस मतलब कि बच्चों को बचपन से प्राइमरी स्कूल में अगर लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो उसका पल्ला भारी है, तो टेक्निकली यू कैन राइट 5 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन, listen to this very very carefully. In body paragraph 1, advantage number 1 of learning a foreign language at primary school. In body paragraph 2, advantage number 2 of learning a foreign language at primary school. क्योंकि आप ऐसा कहते हो कि एडवांटेज ज्यादा है, तो जाहिर है अगर आप ऐसा मानते हो तो आपके पास एडवांटेजेस ज्यादा होने चाहिए, तो आप उसके लिए 2 पैराग्राफ एलोकेट कर सकते हो। एंड पल्ला भारी है, आप ऐसा नहीं कहते कि डिसएडवांटेज है ही नहीं, तो ऐसे केस में तीसरा पैराग्राफ मतलब बॉडी पैराग्राफ 3 और ऐसे का चौथा पैराग्राफ आप डिसएडवांटेज के बारे में लिखोगे एंड फाइनली कंक्लूजन। सो इन दिस केस यू मे वांट टू राइट 5 पैराग्राफ्स। पहले टाइप के ऐसे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बयां करने थे, यू नीड टू राइट 4 पैराग्राफ्स। आउटवे वाला ऐसे होता है, उसमें ज्यादातर बच्चे 5 पैराग्राफ्स लिखते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। यू कैन इवन गो फॉर राइटिंग 4 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस बॉडी पैराग्राफ 2 में, और कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके इंट्रोडक्शन में आपको ये क्लियर कर देना पड़ेगा दैट कि वेदर आउटवे एडवांटेजेस आउटवे है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो भी बयां करना पड़ेगा, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है। Is it getting clear? I'm not going to discuss this essay right now, so don't worry. But have you understood the basics of writing? Yes or no? Everybody, I want answers from everybody. बहुत important है ये। Clear हुआ सबके लिए? I'm going to go very slow. I'm going to go very slow, so don't worry. Clear? Very good. Thank you so much. Even if you, yeah, even if you know are not able to understand, this is entirely going to get recorded, so you don't need to worry about it. Clear? Okay. अब जो तीसरे टाइप का ऐसे है उसमें क्या होगा, देखिए ये तीसरे टाइप का ऐसे है। एडवांटेजेस, कंप्यूटर्स आर बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल लेसन्स। कंप्यूटर्स अभी स्कूल लेसन्स में एक एसेंशियल पार्ट हो गया है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओन ओपिनियन। यहां पे आपको अपना ओपिनियन देना है। तो ये तीसरी टाइप का ऐसे हुआ। सो आई रिपीट, देर आर 5 टाइप्स ऑफ ऐसे इन IELTS। उसमें से एक टाइप है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसमें 3 टाइप है। एक टाइप जिसमें सिर्फ आपको कहा गया है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है। इन द सेकंड टाइप आपको यह कहा जाता है कि डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस? क्या एडवांटेजेस का पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस? ऐसे केस में मैंने आपको बताया था यू मे वांट टू राइट 5 पैराग्राफ्स। और अभी जो तीसरा टाइप का ऐसे है उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और आपको यहां पे अपना ओपिनियन भी देना है। यहां पे भी 4 ही पैराग्राफ्स होंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। लेकिन फर्क ये पड़ेगा that in the introduction you are going to give your opinion. Understood कि भाई चिल्ड्रन कंप्यूटर्स एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल लेसन्स है कि नहीं? Is it everything clear? I have now explained you all the 3 types of essays very precisely. Usually I speak faster, but I am trying my level best to make sure that I speak slow, that it is so that it is easily understood.
इज इट गेटिंग? आउटवे का मतलब पल्ला भारी है, आउटवे का मतलब होता है पल्ला भारी है। एडवांटेजेस, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो इसका मतलब कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू एडवांटेजेस। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? क्लियर एवरीबडी? वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, ये फॉर्मेट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन द रियल आईएलटीएस एग्जामिनेशन। लेकिन याद रहे, ये फॉर्मेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आउटवे वाला ऐसे का मैं लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट हर्ष। ओके, नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के लिए ही इस्तेमाल होगा। मैं बताना चाहूंगा काफी ऐसे भी होते हैं wherein you are only required to give advantages and disadvantages and your opinion is not required, तो you can utilize this format। फॉर्मेट कैसे स्टार्ट करोगे? इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट, वैसे स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर इट इज थॉट बाय सम पीपल दैट, ये जो ब्लैंक है उसमें आप ऐसे का लिखोगे। आई विल कम टू दैट पार्ट आफ्टरवर्ड्स। बहुत अच्छा है, यहां पर आप अल्दो से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड लाइन अल्दो, आप ऐसा, मैं टेक्निकली अगर बोलूं तो ऐसा होगा, अल्दो मुझे लगता है कि इसमें इसमें दो एडवांटेजेस ये और ये है, लेकिन इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स भी है। लेकिन आप देख सकते हो कि कहीं पे भी मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता, मैंने सिर्फ ऐसा कहा भले ही इसमें थोड़े से एडवांटेजेस है लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी दिख रहे हैं, but I am still not giving my opinion. So you need to resist your temptation of giving your opinion. Are you getting the point, my dear students? Yes or no? क्लियर हो रहा है? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ वे दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको लाइफ टाइम काम लगेगी, डोंट वरी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर पीपल आर सेंडिंग मी मैसेजेस, मैं ही देख सकता हूँ मैसेजेस को, लेकिन आप मुझे बताएंगे, मैसेजेस देंगे तो मुझे क्लैरिटी आएगी। क्लियर? ओके, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू राइट, हाउ आर यू गोइंग टू राइट बॉडी पैराग्राफ वन? बॉडी पैराग्राफ वन कैसे करोगे? देखिए, इसको लिख दीजिए, वन एविडेंट बेनिफिट टू, एविडेंट मतलब दिखने वाला, बिल्कुल सामने है, उसको हम एविडेंट बेनिफिट कहेंगे, या तो फिर द मेन बेनिफिट ऑफ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू थिंग्स, आई एम गोइंग टू टेल यू कि सर यहाँ पे एक एडवांटेज लिखा जाए या दो एडवांटेजेस। मैं एक एडवांटेज, मैंने वैसे जैसे भी पहले भी कहा था, आप एक एडवांटेज भी लिख सकते हो और दो एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। अगर आप दो एडवांटेजेस लिखते हो तो तकरीबन 5 सेंटेंस होंगे बॉडी पैराग्राफ में, लेकिन अगर एक ही एडवांटेज लिखते हो तो तकरीबन 3 से 4 सेंटेंस होंगे। मैं आपको छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, बच्चों को कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप 3 या 4 लाइन में एक एडवांटेज अगर लिखते हो, तो अगर 3 या 4 लाइन में पर्याप्त नंबर ऑफ वर्ड्स को नहीं लिख पाते, बिकॉज देन द साइज ऑफ सेंटेंसेस मे बी वेरी वेरी लॉन्ग, ऐसे केस में यू कैन गो फॉर 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। लेकिन एक चीज का याद रखे, अगर एक एडवांटेज देते हो तो एक ही डिसएडवांटेज दीजिए, अगर दो एडवांटेजेस देते हो तो दो डिसएडवांटेजेस दीजिए। अगर आपने दो एडवांटेजेस और एक ही डिसएडवांटेज दिया, या तो फिर वाइसा वर्सा, ऐसे केस में इट अपियर्स दैट यू आर नॉट राइटिंग अ फेयर एंड बैलेंस्ड ऐसे, और यहाँ पे आपका ओपिनियन नहीं मांगा है। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एडवांटेजेस तो दो डिसएडवांटेजेस, एक एडवांटेज तो एक डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये जो हुआ वो बॉडी पैराग्राफ वन, देन दिस इज फॉलोड बाय बॉडी पैराग्राफ टू। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं जिसमें दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस लिखूंगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, द मेन बेनिफिट ऑफ। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर देखिएगा आपको, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स, दिस इज बिकॉज इन अदर वर्ड्स, फिर अनदर रीजन दूसरा एडवांटेज, और वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। जाहिर है दो एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो यहाँ पे वन पॉसिबल ड्रॉबैक ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर ऑन द अदर हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये जो है इसमें ऊपर का जो पैराग्राफ उसके ऑपोजिट आने वाला है, सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद ऑन द अदर हैंड, फिर पहला डिसएडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज।
पहला डिसएडवांटेज आई एम गोइंग टू राइट अबाउट आफ्टर फर्स्टली, एंड दूसरा डिसएडवांटेज आई एम गोइंग टू राइट अबाउट आफ्टर सेकेंडली। फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, या तो फिर टू कंक्लूड लिखे या तो फिर इन कंक्लूजन, दोनों में से कोई भी एक, दोनों लिख के मत आ जाना। यहां पे हमने अल्दो का इस्तेमाल किया था। देखिए, इफ यू लुक प्रॉपर्ली, आई हैव रिटन अल्दो ओवर हियर, दैट मींस आई एम राइटिंग डिस्पाइट ओवर हियर। दोनों का मतलब एक ही निकलता है, बट आई डोंट वांट टू रिपीट माय वर्ड्स, देयरफॉर आई एम राइटिंग डिस्पाइट ओवर हियर। डिस्पाइट न्यूमरस एडवांटेजेस लाइक, अब ये कौन से एडवांटेजेस है वो यहां पे मैं कर सकता हूं। देयर विल बी फ्यू ड्रॉबैक्स लाइक, कौन से ड्रॉबैक है जो मैंने यहाँ पे दूसरे बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन किए होंगे, उसको छोटा सा नाम वर्ड 2 या 3 वर्ड्स लिख दूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, अगेन यू माइट बी टेम्पटेड टू गिव योर ओपिनियन। मैं वापस कहना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट आस्क्ड अबाउट योर ओपिनियन, प्लीज डोंट गिव इट। तो इसलिए मैंने ये कहा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए दोनों मतलब तो सेम ही है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन कंक्लूजन में मैंने ऐसा लिखा, भले ही इसमें काफी एडवांटेजेस है, इसमें थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है, जिसको हम नकार नहीं सकते। नकार नहीं सकते, या तो फिर जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। I want you people to understand and go through this format properly and let me know if you have got any doubts. Understood or not? Just go through it properly. बहुत important है। You can also take a screenshot of this. आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इस फॉर्मेट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर्मेट। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते। ये आपका ऐसे का टॉपिक है, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म contributed to English becoming the most prominent language in the world. Some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken legally. What are the advantages and disadvantages of learning one language in the world? टूरिज्म के डेवलपमेंट के कारण ऐसा हुआ है कि इंग्लिश ही अब प्रोमिनेंट लैंग्वेज होने लगी है पूरी दुनिया में। काफी लोग ऐसा मानते हैं भविष्य में इंग्लिश ही एक लैंग्वेज रह जाएगी जो लोग बोलेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या है अगर एक ही लैंग्वेज आप लर्न करते हो पूरी दुनिया में। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर ओनली गोइंग टू राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर ओपिनियन। हमने जो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करके आई एम गोइंग टू राइट द एसे। मैं चाहूंगा सारे लोग ध्यान से देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मेट हैज बीन यूटिलाइज्ड। ये ऐसे का टॉपिक था, इसको गौर से देखिए, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन। यहां पे मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज, आपको ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ऑफ द ऐसे है, ये चीज मैंने देखिए डार्क में यहां पे भी की है, इसको मैंने पैराफ्रेज कर दिया है। आई मीन पैराफ्रेजिंग का मतलब उसी चीज को मैंने आई हैव रिटन इन डिफरेंट वर्ड्स, बट इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली इट कन्वेज द सेम मीनिंग। अगर आप यहाँ पे ऊपर के पैराग्राफ में जो बोल्ड वर्ड्स है उसको देखोगे और नीचे के पैराग्राफ में जो बोल्ड वर्ड्स है उसको देखोगे, you will find out that it conveys the same meaning. That means I have paraphrased it. Please go through it properly. पहले बोल्ड वर्ड्स को शांति से देख लीजिए और देखिए पैराफ्रेजिंग हुआ है कि नहीं। Let me know. Clear, everybody? Is it clear? Yeah. Okay. Now, see यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीसिस स्टेटमेंट में कौन से एडवांटेजेस है, एक आध दो लिखूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिटेल, बट थोड़े से, सारे सारे ड्रॉबैक्स ना लिखो। देखो ये एग्जांपल याद रखो, ऑल्दो हैविंग वन लैंग्वेज वुड ब्रिंग बेनिफिट्स लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर विल आल्सो बी सम ड्रॉबैक्स। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयर विल आल्सो बी सम ड्रॉबैक्स लाइक,
लेकिन इतना याद रखना है कि अगर आपने ये चीज कर दी है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखोगे, जितना लिखोगे उतना कंक्लूजन में पैराफ्रेजिंग करने में दिक्कत आएगी। तो आप इतना सा कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखिए यहाँ पे लिखा है, although having one language would bring benefits like better understanding and economic growth। तो ये जो है वो एडवांटेजेस है, लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक्स भी आएंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? तो एक ही लैंग्वेज होने के दो फायदे हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन माय बॉडी पैराग्राफ्स। लोगों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि एक ही लैंग्वेज होगी, अलग अलग लैंग्वेज नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। अगर पूरी दुनिया एक ही लैंग्वेज से काम करती है, देन देयर विल बी बेटर ग्रोथ। यू डोंट, देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि अगर आप फ्रांस को अभी कुछ जरूरत है आपके लोग, आप जैसे लोगों की, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज नॉट वेरी फ्यू इन इंडिया विल नो फ्रेंच। तो ऐसे केस में अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो ये दिक्कतें नहीं आएगी। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। आई एम नाउ गोइंग टू राइट अबाउट द बॉडी पैराग्राफ 1। अब गौर से बॉडी पैराग्राफ को देख लीजिए, मैं चाहूंगा आप सब लोग रीड करें। Let me read first of all, read it for you, and then you can read it yourself. One, ये जो बोल्ड वर्ड्स है वो मैंने जो फॉर्मेट आपको दिखाया था उसका ही इस्तेमाल है। One evident benefit to having one global language is that it would enable greater understanding between countries. In other words, if everyone spoke one language, अब सब लोग एक ही लैंग्वेज को अगर बोलते हैं, there would be complete understanding between not only countries but all people throughout the world, which would promote learning, the flow of information and ideas. अगर सारे लोग एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और लर्निंग और आइडियाज का आपले ज्यादा अच्छी तरह से होगा। तो आप देखिए एडवांटेज, इतना सोचिए, इतना याद रखिए, अगर एडवांटेज दो लिखते हो तो एक एक एडवांटेज में दो दो सेंटेंसेस लिखना जरूरी मिनिमम है। एक ही सेंटेंस लिख के अगर आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज प्रॉपरली। तो आपके टास्क अचीवमेंट में मार्क्स कटेंगे, कोहेजन और कोहरेंस में भी मार्क्स कटेंगे। तो जरा सा ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा रीजन देखिए, मैंने बताया था आपको दो एडवांटेजेस बता रहा हूं। आप यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है बेटर अंडरस्टैंडिंग, देखिए इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बेटर अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जाहिर है अब दूसरा जो रीजन होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में होगा। Another reason that one language would be advantageous is that it would help economic growth. This is because when all people are speaking the same language, there would be fewer barriers. Barriers मतलब कम रुकावटें होगी, and therefore trade मतलब धंधा पानी एक दूसरे के बीच में वो फ्लरिश का मतलब डेवलप होगा, रिजल्टिंग इन अ हेल्दियर वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो दो देशों के बीच में अच्छा धंधा पानी हो पाएगा। देयर बी बेटर ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज व्हिच विल लीड टू हेल्दियर वर्ल्ड इकोनॉमी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? आप देखिए कैसे मैंने दो एडवांटेजेस को लिखा है, और अगर आपके पास दो एडवांटेजेस है तो मैं चाहूंगा कि दो एडवांटेजेस लिख सकते हो आप, बट एक एडवांटेज में कम से कम दो लाइन लिखिए। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? यस और नो? इतनी अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कोई समझा नहीं पाएगा। अगर मेरे लेक्चर में नहीं पता चला तो भगवान को प्रार्थना करो, क्योंकि बाद में किसी भी लेक्चर में पता नहीं चलेगा। क्लियर? ओके, नाउ जाहिर है दूसरा डिसएडवांटेज आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द डिसएडवांटेजेस। अब देखिए डिसएडवांटेजेस कैसे लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड, वही वो डार्क वाला जो पोर्शन है मैंने बताया था, देर आर ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस टू हैविंग वन ग्लोबल लैंग्वेज। जाहिर है अगर एक ही ग्लोबल लैंग्वेज होगी तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्या है? फर्स्टली, इट वुड मीन दैट ऑल अदर लैंग्वेजेस वुड इवेंचुअली डिसअपियर एंड अलोंग विद देम देयर कल्चर्स। इससे ये होगा कि काफी लैंग्वेजेस मृतपाय हो जाएगी और उसी के कारण कल्चर भी उसके साथ चला जाएगा। फर्ज कीजिए कि अगर गुजरात में सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है तो गुजराती लैंग्वेज तो खत्म होती ही होती है, लेकिन गुजरात का जो साहित्य होता है, आर्ट्स होता है, वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है। तो अगर एक ही लैंग्वेज होती है तो न सिर्फ वो दूसरी लैंग्वेज खत्म हो जाती है, उसके साथ जुड़े हुए कल्चर्स भी खत्म हो जाते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस आपको सब पता होगा माओरी। माओरी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है न्यूजीलैंड में। माओरी लैंग्वेज ऑफ न्यूजीलैंड इज नॉन एग्जिस्टेंट टुडे,
because of widespread use of English and Maori culture is also lost as a result. आज की तारीख में न्यूजीलैंड में माओरी कल्चर जो है लैंग्वेज खत्म हो गई, बिकॉज ज्यादातर बच्चे न्यूजीलैंड में लोग इंग्लिश ही इस्तेमाल करते हैं, तो माओरी लैंग्वेज तो खत्म हो गई, इसके साथ बहुत सुंदर सा माओरी कल्चर भी खत्म हो गया। उसका दूसरा डिसएडवांटेज, सेकेंडली इट वुड रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ टूरिज्म, इससे ये भी होगा कि टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। किससे? एक ही लैंग्वेज अगर होती है। क्यों? बिकॉज देयर वुड बी नो रीजन टू ट्रैवल फॉर प्लेजर एंड इंटरेस्ट इफ ऑल कंट्रीज हैड द सेम लैंग्वेज एंड सिमिलर कल्चर्स। आप क्यों अहमदाबाद को छोड़ के वडोदरा ट्रैवल करने नहीं जाते? क्योंकि आप जानते हो कि अहमदाबाद में गुजराती बोली जाती है और वडोदरा में भी गुजराती बोली जाएगी, तो नया क्या सीखने को मिलेगा? कल्चर भी वही है। वैसे ही अगर एक ही लैंग्वेज होगी इंग्लिश की, तो आपको दुनिया में अलग अलग जगह पे घूमने का मजा नहीं आएगा, और शायद मजा नहीं आएगा तो आप कम कर दोगे, तो ऐसे केस में टूरिज्म भी कोलैप्स हो जाएगा। नतीजा ये होगा, दिस वुड डेवस्टेट मतलब खत्म कर देगा मेनी कंट्रीज इकोनॉमिकली दैट रिलाई ऑन टूरिज्म एज ए सोर्स ऑफ इनकम। इससे काफी कंट्रीज जिसका पूरा इकोनॉमी टूरिज्म पे चलता है वो शायद मर जाएगी। कंक्लूजन समझने वाली बात है। देखिए, आपको याद है हमने इंट्रोडक्शन में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल, डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल किया था? याद करो। इन कंक्लूजन याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया? डिस्पाइट के बदले क्या किया था? याद करो, सोचो सोचो। वेरी गुड, मधु हैज गिवन मी द राइट आंसर, अल्दो। याद आ रहा है? अल्दो, आई गिव यू रोट अल्दो। तो वैसे ही यहाँ पे अल्दो मत लिखो, तो यहाँ पे लिखो डिस्पाइट। इज इट गेटिंग क्लियर? सो in conclusion, despite numerous advantages like proper flow of information या तो फिर proper information flow and uniform economic growth, भले ही एडवांटेजेस है एक ही लैंग्वेज होने का, एक तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो निकल के आता है, मैंने बताया था वैसे, और यूनिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, देयर विल बी फ्यू ड्रॉबैक्स लाइक लॉस ऑफ लोकल कल्चर। एक ऐसा ड्रॉबैक, पहला तो लॉस ऑफ लोकल कल्चर, जिसके लिए हमने माओरी का एग्जांपल दिया, एंड डाउनफॉल ऑफ टूरिज्म। देखिए, सेकंडली के बाद हमने टूरिज्म के डाउनफॉल के बारे में इस्तेमाल किया है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। भले ही इसमें न्यूमरस एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होगा, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, लेकिन दो डिसएडवांटेजेस, जैसे कि पहला लॉस ऑफ लोकल कल्चर एंड डाउनफॉल ऑफ टूरिज्म भी होगा उसके साथ, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद रखें, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है। आप देख सकते हो, इन इंट्रोडक्शन एंड इन कंक्लूजन, इन बोथ द केसेस आई हैव नॉट गिवन माय ओपिनियन, बिकॉज आप ऐसे में ओपिनियन आपका पूछा ही नहीं है। Any questions, any doubts, students? Yes or no? Because now I'm going to give you a small homework. You can utilize tourism. Yeah, you are right, Jaldi. Madhu, you can utilize tourism. Okay, any questions, any doubts, students? I hope you enjoyed the session. Please don't go away, because I'm going to give you a small homework. First of all, did you enjoy the question? Yes or no? Everybody, even the new students, did you understand? Yes or no? I want answers from everybody. ये ट्राई करना है, you just need to try that, you understand it, so don't worry about that part. In case if you got any doubts, any queries, you can always call me tomorrow. It's absolutely fine, you can call me tomorrow, not an issue. Okay, now छोटा सा एग्जांपल मैं चाहूंगा आप लोग ये ट्राई करें, आप लोग ये ऐसे ट्राई करें। आई वांट यू पीपल टू ट्राई, और मुझे बताए क्या लिख सकते हो। मैं चाहूंगा, जो लोग नए हैं वो लोग ट्राई नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो पुराने हैं बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए, तो ये ऐसे जो है वो आपको लिख के लाना है। विद द राइज ऑफ ई बुक्स कम्स द डिक्लाइन इन पेपर बुक्स। ई बुक्स आने से, ई बुक्स मतलब जो आप मोबाइल पे किंडल पे आप रीड करते हो, वो ई बुक्स आने से पेपर बुक्स डिक्लाइन हो गई है। Some people see this as a good step forward while others do not. काफी लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, काफी लोग बोलते हैं नहीं ये बिल्कुल गलत चीज है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस ट्रेंड के क्या है? कौन से ट्रेंड के? कि भाई राइज इन ई बुक्स आ गई है, कम्स द डिक्लाइन इन पेपर बुक्स, मतलब ई बुक्स का राइज, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये मान के चलना है कि ई बुक्स का राइज है, आपको सिर्फ ये देखना है, लिखना है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एंड फॉर दैट आई वांट यू पीपल टू यूटिलाइज द स्ट्रक्चर दैट आई गिव यू। आप क्या करोगे?
आप जब मुझे ऐसे देते हो, व्हेन यू आर गिविंग मी द ऐसे, मेरी बात सुनो, व्हेन यू आर गिविंग मी द ऐसे, आप ऐसे में सब्जेक्ट जब ईमेल करते हो मुझे, सब्जेक्ट में लिखोगे विशाल सर ऐसे, क्योंकि ये ऐसे मैं खुद चेक करूंगा, और आप exam.iltscme@gmail.com पे इसको ईमेल करोगे. I would want you people to email because on Saturday I'm not going to give you the essay topic in the examination. ये एग्जाम का ही ऐसे का टॉपिक है, वो मान के चलो. So what you need to do is, और याद रखना, अगर गूगल करके देखा तो मैं चेक नहीं करूंगा, मैं पता कर लूंगा कि गूगलिंग किया है कि नहीं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज डोंट गूगल, एंड यू नो आई एम वेरी स्मार्ट टू फाइंड आउट दैट थिंग. ओके, तो क्या करना है आपको, ये जो ऐसे है इसको आपको मेरे फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है. फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है. I have given you the format. I am coming to that format वाला screen once again so that you can again take a screenshot. Don't worry. लेकिन ये ऐसे को आप क्या करोगे, you are going to send me on exam.iltscme@gmail.com and in the subject area you are going to write विशाल सर ऐसे. अगर आपने सब्जेक्ट में विशाल सर ऐसे नहीं लिखा तो it will probably not be checked by me. Understood? Any questions, any doubts students? Yes or no? कल आप मुझे 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो. यू कैन सबमिट इट बाय टुमारो 12 PM इन द मॉर्निंग. आई विल अदरवाइज नॉट चेक इट. लेट मी टेल यू, आई एम वेरी ऑथेंटिक. आप देखिए मेरा लेक्चर जो होता है 8:30 बजे एग्जैक्टली चालू हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप यही चीज कल 12 बजे से पहले मुझे करके देखिए. अगर आप शाम को, अगर अभी अभी मेरे लेक्चर खत्म हो जाने के बाद कर सकते हो तो मुझे कर सकते हो, नॉट एन इश्यू. ये रहा आपका फॉर्मेट. आपने ये ईमेल, डिड यू नोट डाउन द ईमेल एड्रेस एवरीबॉडी? यस और नो? देखिए काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं सर 4 बजे के बाद पहले करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सब लोग अगर चाहे तो 12 बजे के पहले. आप रात को सो जाग के 40 मिनट का टाइम है इसको लिखने के लिए, 40 मिनट लगेंगे. यू डोंट नीड टू वरी. व्हाई शुड यू वरी? क्लियर? ओके. अब ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है आपको, ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है. ये रहा फॉर्मेट. मैं वापस फॉर्मेट पे आता हूं. आप ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करोगे. ऐसे लिख दिया पहले, ये फॉर्मेट को स्क्रीनशॉट ले लो. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट एवरीबॉडी? यस और नो? Take the screenshot of this format and don't share it to anybody. I want none of you to share it to anybody. Please don't do that. Okay? Very good. अब क्या करना है आपको? What you need to do is, ये ऐसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Let me take the, okay, just a minute. ये ऐसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that you don't miss it. ले लिया देखो तो. So आपके पास दो स्क्रीनशॉट है. One is about the format and second one is of the essay that I have taught you right now, or I have given you as a homework. Okay. Now your job is to send me, if it is possible. मैं सबके लिए कंपलसरी नहीं कहूंगा, जो लिख पाते उसी, जो नए बच्चे वो ट्राई कर सकते हैं. If they don't want to write, it is absolutely fine. लेकिन जिनको जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं. Okay, so this ends our session. I am exhausted, students. इतनी एनर्जी से बोलना पड़ रहा है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ 1-1.5 घंटे के बाद. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. वी टुक 2 टेंसेस टुडे. हमने टेंसेस के बारे में 2 चीज की. यू कैन ऑलवेज कॉल मी टुमारो मधु. यू कैन कॉल मी. या यू कैन कॉल मी टुमारो. आई विल पिक अप योर कॉल. डोंट वरी. एनीबडी? Yeah, you can call me on the same number of your of the institute. I'll take the things. Don't worry. And this session is going to be recorded, so don't worry. This session is going to be recorded. In case if you want to go through it again, it is absolutely fine. Thank you so much, students. I hope you enjoyed the session. This ends our session, and have a very good night. Thank you so much. Thank you. Good night. Bye.